Dear students, class 11th A and B, the basic knowledge of psychology is essential for us if we want to understand the psychological aspect of physical education. The word psychology is a combination of two Greek words, psycho and logos. Psycho means soul and logos means science. So psychology means the science of social. After some time, this meaning of psychology was desired because there was no physical identity of soul. Later on, psychology was considered as the science of mind, but this meaning of psychology was also rejected as it was a hard task to know about the mind of other person. After that, psychology was considered as the science of the consciousness. With the passage of time, this meaning of psychology was also described, and now it is called the science is a behavior according to the conclusion of Woodworth. First, psychology lost its soul, then it lost its will, then it lost to continuance. It is a behavior of support. शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्षों के अच्छी तरह से समझने के लिए सर्वप्रथम मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के साइको और लोगोस शब्दों से मिलकर बना है। साइको शब्द का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस शब्द का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। लेकिन आत्मा के स्वरूप के बारे में वास्तविक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इस अर्थ को मान्यता नहीं मिल पाई है। कुछ समय पश्चात इसके स्थान पर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति के मन, माइंड के बारे में जानना भी एक कठिन कार्य है। इसी कारण मन शब्द का त्याग कर इसकी जगह चेतना या चेतना कंसिस्टेंस को दी गई है। लेकिन कंसिस्टेंस शब्द का क्षेत्र भी व्यापक होने के कारण यह भी कुछ समय के उपरांत बदल गया है। अंत में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान, साइंस बिहेवियर कहा गया है, जो आज भी मान्य है। वुडवर्थ के निष्कर्ष के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा को त्याग किया है, फिर उसने अपने मन को त्याग, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्याग किया और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इन सोल, देन इट लॉस्ट इट will meaning and definition of psychology. According to Ross, it is the interpretation and the explanation of the behavior of mental of the psychological terms. मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। According to James Dever, it is the science which seeks to the interpret in physical of the mental terms behavior to living organism for as the physical conductivity. वुडवर्थ के निष्कर्ष के सर्वोत्तम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्याग किया। अकॉर्डिंग टू फिल्सबरी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। अकॉर्डिंग क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानवीय संबंध को अध्ययन है। मैकडूगल, वुडवर्थ, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटी इज द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इट एनवायरमेंट। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति क्रियाओं से संबंधित वातावरण से है। वाटसन, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी। स्पोर्ट साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स training, fatigue and energy for performance, etc. Sports biomechanics is the study of various force
that act on human body and the effects that these force produce. It also deals with the applications of principles of human human motion and sport object motion and the mechanical analysis of actives. These two subject discipline of physical education are playing their vital role in this in the enhancement of the performance of the sport person, but only used to certain limit. At this stage the sport psychology is helpful and it plays a vital role in the enhancement of the sports performance sport person because it has no such limit. Indeed, sport psychology is the study of psychology factors that affects the learning and performance of motor skills. Due to the importance of role in the enhancement of the performance in sports field, it is necessary for us to know the exact meaning at sport psychology. The following definition may enable to the understand the exact meaning sports psychology. शरीर खेल शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर स्वस्थ फिटनेस खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट ट्रेनिंग थकावट और प्रदर्शन के लिए ऊर्जा आदि पर व्यायाम के प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। खेल जीव यांत्रिक एवं अनेक शक्तियों का अध्ययन है जो मानव शरीर पर क्रिया करते हैं और उन प्रभावों का जो शक्तिशाली उत्पन्न करती है। वे भौतिक के सिद्धांतों जो मानव गति के खेल उपकरणों की गति व क्रियाओं के यांत्रिक विश्लेषण मैकेनिकल एनालिसिस में लागू होते हैं। वे भी संबंधित शारीरिक शिक्षा के दोनों विषय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। ऐसी दशा में खेल मनोविज्ञान काफ़ी सहायता करता है। यह खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तव में यह खेल मनोविज्ञान उन मनोविज्ञान कारकों साइकोलॉजी फैक्टर्स का अध्ययन है जो गति गामक कौशल मोटर स्किल के प्रदर्शन के सीखने को प्रभावित करते हैं। मुख्य भूमिका के कारण हमारे लिए खेल मनोविज्ञान के सही अर्थ को समझना अति आवश्यक है। खेल मनोविज्ञान की निम्नलिखित परिभाषाएं हमें इसके सही अर्थ को समझने के योग्य बता सकती है, अर्थात इन परिभाषाओं की सहायता से हमें इसके सही अर्थ को समझ सकते हैं। जॉन लूथर अकॉर्डिंग टू John Luther, sports psychology is an area which attempts to apply psychological facts and principles of the learning, performance and the associated human behavior in whole field of sports. खेल मनोविज्ञान का क्षेत्र वह है जो मनोविज्ञान तथ्यों सीखने के सिद्धांतों प्रदर्शन तथा खेलकूद के मानवीय व्यवहार में संबंधों में लागू होता है। K.M. Burns Sport psychology of physical education is that branch of the psychology which deals with the physical fitness of an individual through this participation in games and sports. खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक योग्यता से होता है जो कि खेलकूद में भाग लेने से आती है। सिंगर अकॉर्डिंग टू सिंगर, स्पोर्ट साइकोलॉजी इज एक्सप्लोसिव वंस बिहेवियर इन एथलेटिक। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार को खोजबीन करता है। क्लर्क अकॉर्डिंग टू क्लर्क, स्पोर्ट साइकोलॉजी इट अप्लाइड साइकोलॉजी, इट इज ए मोर कंसर्न विद द पर्सनैलिटी इमोशनल ऑफ द motivational aspect of sports and psychology activities. It employs many of the technique used in psychology. क्लार्क के अनुसार खेल मनोविज्ञान एवं व्यवहार मनोविज्ञान व व्यक्तित्व तत्व खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं के परिणात्मक या संज्ञानात्मक पहलू से अधिक संबंधित होता है। इसमें प्राय उन सभी विधियों का प्रयोग होता है जो मनोविज्ञान में प्रयोग की जाती है। ब्राउन एंड मैकोनी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी एक्टिविटी टू ऑल लेवल्स ऑफ द स्किल इम्प्रूवमेंट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इट इज द scientific study of persons and their behavior in sports contents and the practical application of that knowledge. Sports psychology deals with increasing performance by managing emotion and the minimizing
the psychological effect of the injury and poor performance. It is a clear from the above maintained definition of sport psychology. It is the study of behavior and various psychological except in the field of sports. खेल मनोविज्ञान सिद्धांतों का कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा खेल क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। खेल मनोविज्ञान व्यक्ति तथा खेलों के संदर्भ में उनके व्यवहारों तथा उस ज्ञान के व्यवहारों प्रयोग का वैज्ञानिक अध्ययन है। It is a clear from the above maintained definitions sport psychology is the study of behavior and various psychological except is the field of sports. उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि खेल मनोविज्ञान खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ियों के व्यवहार व विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी। इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट इट इज द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर अचीव ए वेरी हाई लेवल एंड द स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट सेम्स टू लेस फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेंथ स्पीड ऑफ एंड्योरेंस etc. which are the aspects of the sport psychology have reached almost of the maximum level. In the same way, the development of the techniques has also reached in situation. The further development of the improvement is this except. It is a very less so the only except of the further improvement in sports performance depends upon psychological aspect of the psychological education as a personality takes as the relation of sports and games sports intelligence motivation for the physical activity growth and the development. खेलकूद के क्षेत्र में हम एक आम सत्य है कि शरीर क्रिया विज्ञान के जीव यांत्रिक बहुत उच्च स्तर प्राप्त कर चुकी है एवं गति विकास के अवसर बहुत कम प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए शक्ति गति व सहन क्षमता आदि जो खेल शरीर क्रिया विज्ञान के पक्ष में लगभग अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच चुके। इसी प्रकार तकनीकों का विकास भी लगभग अपने चरम बिंदु तक पहुंच चुका है। इन पक्षों में और बढ़ोतरी या विकास की कम संभावना, इसलिए खेल प्रदर्शन में और अधिक बढ़ोतरी या विकास की संभावना केवल शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर निर्भर करती है, जैसे खेलकूद से संबंधित या विशेषताएं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, खेल बुद्धिमत्ता, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस, शारीरिक क्रियाओं के लिए अभिप्रेरण वृद्धि और विकास, समविंग या भावना, मोर इंटरेस्ट, अभिरति, एटीट्यूड, गामक सीखना, मोटर लर्निंग, व्यक्तिगत भेद, इंडिविजुअल आदि वास्तव में खेल मनोवैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत भूमिका अदा करता है, जिनमें बिंदु खेल के महत्व को समझने में हमारी सहायता कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।